They are all new students who came in February intake. सब लोग दिखेंगे पाजी तो कमर मटका रहे थे डांस करते हुए. I would really suggest कि as soon as you start getting documents, start the process as soon as possible. एक कंडीशन था कि you have to submit your IELTS PT English language. They increase the required ITR, जिसकी वजह से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. But like gap year, you're saying? हाँ, कॉलेज में जब बैचलर्स में था Oh, okay. तब मेरा 2 साल का ड्रॉप भी हुआ था. बट मेक श्योर कि वो जो दिखाते हैं वैसा नहीं होता है. ठीक है. आई गॉट स्कैम. और भाई को देखो बहुत सारी किसेस मिली हैं, शर्ट पे दिख रहा है. Hi guys, hello and welcome back to another video. This is your Caps Vlog and today we are back with some of the students. Welcome guys. They are all new students who came in February intake, and the way I make videos on क्या ground reality है हर intake की. So this is February intake 2025. बात करते हैं लोगों से. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. I'll just be the host and ask questions और ये लोग ज़्यादा better अच्छे से जवाब दे पाएंगे. Lighting थोड़ा सा आप manage कर लीजिएगा, बाकी हम थोड़ा editing में देख लेंगे. And in addition, we have different people over here, different courses. RMIT से बोन स्ट्रीट वाला ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है. सब लोग दिखेंगे. पाजी तो कमर मटका रहे थे डांस करते हुए. ठीक है. सो आपको दिखेगा, आई बिलीव आवाज में सब कुछ ठीक है. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दो. Hi, I'm Dhruv Sharma. I'm from Hyderabad, India. I've come here to do my Masters of Business Administration, and this is my zero week here, and I'll be starting next week. I have a rough background of working with Amazon as an HR or doing digital marketing, and I have studied law in my undergraduation, and here I am with all these lovely people. वन मोर क्वेश्चन इसी में कि वीजा किस डेट आया, वो डेट बताओ. I had lodged my visa on 6th of January. I got it on 7th Feb at around 7 p.m. in the evening. ओके. नेक्स्ट. So hello everyone, I am Karan Gurjar and currently I am enrolled in Masters of AI, and I have a background of full stack development or one year experience, and I have done my bachelor's in mechanical, and I got my visa on 21st Feb and I have applied for on 17th Jan. Hello guys, my name is Tushar and I am from Panvel, Mumbai, Maharashtra. And I have done bachelor's in management studies and that too specialization in marketing. And right now I'm here for doing my masters in logistics and supply chain management. And मैंने मेरा visa around 23rd of December को apply किया था and I got it within like 5 minutes. It was a auto grant. Yeah. Hello guys, I am Atharva Salvi. I am from Mumbai, Maharashtra. एंड मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ फिनांस में, एंड मैं यहाँ पे भी RMIT में आया हूँ मास्टर्स ऑफ फिनांस करने. मेरा वीज़ा आई डिड फ्रॉम IDP एंड मेरा ऑटो ग्रांट था. मैंने अप्लाई किया था 3rd Jan को एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरे को मेरा ऑटो ग्रांट वीज़ा मिल गया था. Hello guys, my name is Jaskaran and I am also from Mumbai. I did my bachelor's in computer applications and मैंने अपना वीज़ा सेम IDP के थ्रू लॉन्च किया था and I did it around October 23rd and मेरे को 10-15 डेज़ के अंदर वीज़ा आ चुका था. तो अभी मैं मास्टर्स इन IT यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. दैट्स गुड. सो आप लोगों का वीज़ा मल्टीपल जगह पर आया, मतलब अलग अलग चीज़ों से आया, आपकी प्रोफाइल्स अलग अलग होंगी. यहाँ पर बिजनेस वालों में से जो सा एक बार हाथ था जो जिनकी फैमिली बिजनेस में, बाकी मतलब जो अपने फाइनेंशियल शो करे वो बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं. आप पांचों के बिजनेस था. Yes. जी. ओके. सो हम शायद उस चीज़ पे कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि एम्प्लॉयज वगैरह, बट आपके कुछ दोस्त हैं जिनके फादर या मदर एम्प्लॉयज थे, ऐसा कोई है दोस्त आपके बैंक में जो आया ऑस्ट्रेलिया? है मतलब है मेरे दोस्त कुछ. हाँ, तो उनका वीज़ा सही टाइम पे आया या नहीं? सही टाइम पे लाइक सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे गॉट इन लाइक ऑटो ग्रांट और कुछ का लाइक वही एक महीना लगा ट्रेडिशनल प्रोसेस. तो लाइक ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस फैमिली से तो चलते आता है, ऐसा कुछ नहीं है. मिक्स्ड है. Why I was asking is क्योंकि बिजनेस फैमिलीज के यूजुअली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांग होते हैं. और जितना हम फाइनेंशियल और एकेडमिक स्ट्रांग दिखाएंगे उतना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ट्राई करता है कि हमें जल्दी वीजा दे. सेकंड पॉइंट होता है कि ऑटो ग्रांट हो जाए, व्हिच हैपेंड टू यू, व्हिच इज नॉट द आइडियल केस फॉर एवरीवन. मेरा सवाल ये है, आई गेस आप लोग सब इससे राजी होते हो, और क्या आप ये लोगों को बोलना चाहोगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दो, लेट ना करो. इवन इफ यू वांट टू डू इट इंटेंशनली, लेट ना करो. इज इट करेक्ट? It is correct. It is correct actually. It is correct. तुम में से जो कोई है जिसने लेट किया और जिसको कुछ प्रॉब्लम? I did. So what we had actually planned was we would file it on 25th or before 25th of December. Okay.
so that I would get it a little bit more earlier. But I feel so there was a little bit delay on my end because I had to source the documents from different places. So I would really suggest that as soon as you start getting documents, start the process as soon as possible, because you don't know what you're going to get in the interview that the university takes. Plus also the faster the better for you, because then you are not in that zone, what's happening, where am I getting in or not. इन एडिशन इसी चीज़ के साथ बिकॉज यूनिवर्सिटी की बात हुई, सो आई बिलीव आप लोग इसको क्लियर आउट ज़्यादा बेटर कर पाओगे. हर एक बंदे का एक अलग सवाल होता है, क्वेश्चन होता है. ये मेरा पॉइंट है जितना मैं समझा. यूनिवर्सिटी कोई भी हो, यूनिमेल्ब हो, RMIT हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, उनके कुछ क्वेश्चंस बेसिक होते हैं कि क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ नहीं है इसलिए पढ़ना चाहते हो, पढ़ने के बाद क्या गोल्स हैं, और आपका जो आपके बारे में बताओ. स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन ये होता है अपने बारे में बताओ. एकेडमिक्स, फाइनेंशियल्स को इतना नहीं पूछते, यूनिवर्सिटी वालों को फाइनेंशियल से ज़्यादा मतलब, राइट? इज इट करेक्ट और नो? क्योंकि बच्चों को लगता है कि हर यूनिवर्सिटी अलग क्वेश्चन रखती है. आपको यही क्वेश्चन मिले थे या इनमें से कुछ अलग मिला था? लाइक फॉर माई साइड, मतलब मैंने SI ग्लोबल करके काउंसलर थे, उनके थ्रू कराया था, तो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह तो कुछ आया नहीं था उनकी तरफ से. आई जस्ट लॉन्च्ड माई एप्लीकेशन एंड उसके बाद मैंने अपना एकेडमिक्स एंड फाइनेंस से डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अपलोड किए थे. एंड उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर भी बहुत जल्दी मिल ही गया था. एंड मेरा IELTS बाकी था उस वक्त, बट वो भी विद इन अ वीक वो भी क्लियर हो गया था. तो मेरे पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर था हाथ में, लाइक इन 2 to 3 weeks आ ही गया था वो डालने के बाद. एंड ज़्यादातर आपने अभी जो क्वेश्चन पूछे कि दे नीड टू नो अबाउट अस व्हाट वी हैव डन, तो वो मेरे को जस्ट अपना जो GS था, GS के क्वेश्चंस थे वीज़ा के टाइम पे जो लॉन्च करना था, तो उसी वक्त वही आए मेरे को और मैंने उसी वक्त उनके बारे में पूरा आंसर किया था. या इट वॉज प्रीटी सिंपल प्रोसेस फॉर मी. मेरे को ऐसा कुछ फाइनेंशियल्स वगैरह दिखाने नहीं पड़े फॉर RMIT. आई गो टू IDP, आई जस्ट गिव ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव, और मैं तुरंत मेरे को अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया. दैट इज़ लाइक विद इन 1 day और समथिंग आई गेस. और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट जमा करने लग गया, व्हाट ऑल थिंग्स द IDP टोल्ड मी. एंड फिर मेरा सिर्फ एक कंडीशन था अनकंडीशनल में, कंडीशनल में एक कंडीशन था कि यू हैव टू सबमिट योर IELTS PT इंग्लिश लैंग्वेज. यूजुअली वही होता है. वही होता है. देन आई सबमिटेड इट. विद इन 3 days आई गॉट माई अनकंडीशनल ऑफर लेटर. दैट वाज फॉर मी. मेरे लिए कोई ऐसा मतलब क्वेश्चंस वगैरह आस्क नहीं हुए, फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग. So I had gotten an 8 in IELTS, and after that I went to my agent who's Transglobe at Pune, who helped me with the whole process. It was pretty simple. They kind of put me through they will ask you this question: why you want to go to Australia firstly, why RMIT, and what you want to do. So they want a exact match of the career trajectory that you're planning for yourself, directly, indirectly. Those are the questions that they usually ask you in the GS and the GQ. I think you would have also noticed that in all the whole set is basically arranged in such a way that they get that answer directly or indirectly, whether you have that clarity or not. That's what. इस चीज़ में does anyone have any point on that? नो. So the thing is, एक सवाल ये भी है कि ईमानदारी से बताइएगा, मैं नंबर और अमाउंट नहीं पूछ रहा, बट ये सच है कि जिसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं उसकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं दी जाती है, ऐसा देखा जाता है. इट्स नॉट ट्रू बट इट सीम्स लाइक अपेरेंटली. सो क्वेश्चन ये है कि आप में से कोई ऐसा है जिसको खुद को ही सबको अपनी प्रोफाइल पता होती है, किसने गलत डॉक्यूमेंट लगाया उसे पता होता है, किसका गैप है उसे पता होता है, किसकी कितनी अच्छी इंग्लिश है उसे पता होता है, किसके कितने फाइनेंशियल अच्छे हैं उसे पता होता है. किसी को ऐसा था कि मेरे फाइनेंशियल अच्छे नहीं है बट फिर भी मेरे को टाइम से पहले या टाइम पे वीज़ा आ गया. कंडीशन है आप में से किसी की जिसको लगा कि मेरे फाइनेंशियल ठीक नहीं थे, और कोई ऐसा है कि नहीं मुझे पता था मेरे फाइनेंशियल भी ठीक है, जितनी डिमांड है उतना भी सही है, ऐसा? फॉर मी आई वुड से कि मेरे फाइनेंशियल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. आई यूज टू फाइल ITR ऑफ 6.5 टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे फाइनेंशियल का ये बैरियर एक्ट किया मेरे फाइनेंशियल्स ने, बिकॉज आई गॉट ऑटो ग्रांट. जस्ट मेरे को जो लोन लेना था, स्टूडेंट लोन, सो वहाँ पे सीन हुआ कि लाइक ITR का फाइलिंग कम है, सो यू वोंट गेट दैट मच ऑफ लोन. आई टुक 40 lakhs का लोन, सो दैट इज द क्वेश्चन. बाकी मेरे को ऐसा किधर लगा नहीं कि मेरे फाइनेंशियल्स के वजह से मैं अटक रहा हूँ कहीं पे.
and even I got auto grant, so that's not the case for me, I guess. फॉर मी मैंने भी स्टूडेंट लोन पे आया हूँ मैं, बट फाइनेंशियल बैरियर हैज़ बिन नथिंग फॉर मी बिकॉज मैंने भी IDP थ्रू कराया था, एंड IDP हैज़ हेल्प मी फ्रॉम स्टेप 1 to until I get my final offer letter. सो बट सिंस मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ऑब्वियसली बिजनेस में. सो जस्ट फॉर सेफर साइड मैंने भी एक स्टूडेंट लोन लेके वी प्रोसीड टुवर्ड इट. बट आई वुड से फाइनेंशियल बैरियर मेरे इसमें तो नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली IDP हैज़ बीन अ ग्रेट एड फॉर मी. तो अर्लियर मैं जून में अभी ग्रेजुएट हुआ था एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी. तो उसमें कैसा हुआ कि वी शोड अराउंड 14 to 15 lakhs ऑफ आइडिया एंड मेरा एप्लीकेशन जा चुका था उनके पास. बट ड्यूरिंग माई एप्लीकेशन वाइल इट वॉज बीन प्रोसेस्ड उनके रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गए एंड दे इंक्रीज द रिक्वायर्ड ITR, जिसकी वजह से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. नहीं तो otherwise you would want to go into Griffith University. Yeah, it was my first preference at that time. Sorry for that. But see, eventually आप यहाँ आए and now you are making videos for students. Makes sense. In addition, इस चीज़ में वीज़ा की बातें बहुत हो गई. I believe आप लोगों को बेसिक क्राइटेरिया समझ के आ गया कि फाइलिंग बहुत मैटर करती है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है. जितना मेरा ऐसा सोचना है. आई वॉन्ट particularly your answer on that. कि you got ऑटो ग्रांट. क्या ये सच है कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली रीनेम करके सही ऑर्गेनाइज बना के फोल्डर्स बना के दो जिसमें आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हों, या एग्जांपल फाइनेंशियल हटा दो तो स्टूडेंट लोन क्लियरली शो हो रहा हो, अच्छे डॉक्यूमेंट्स हों, तो सिस्टम ही ऑटो ग्रांट दे देता है. डू यू माइंड इट और नो? इज इट ट्रू अकॉर्डिंग टू यू? क्या आपके सब कुछ रीनेम थी फाइल्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज था, कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत वे में नहीं था, कोई भी गैप नहीं था, अकेडमिक स्ट्रॉन्ग थे, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो जो आपने लोन दिखाया वो पूरे क्लियर कट डॉक्यूमेंट अच्छे थे? मेरे all documents were okay and I am like the fresher वाला thing. मैं directly fresher हूँ, मतलब मैं just pass out हुआ then I going for masters, so मेरा ऐसा gap का scene नहीं था. Another thing, there was a mistake in my brother's Aadhaar card name, so like पूरा नाम ही different था मेरे भाई का, so मेरे को तो नहीं लगता है like. फिर एफिडेविट वगैरह बनवाया था उसके लिए? एफिडेविट बनवाया था but I didn't attach it because मेरी जो काउंसलर थी शी टोल्ड कि लाइक इतना जरूरत नहीं पड़ता है. भाई का ना? हाँ. प्लस भाई के अकाउंट से पैसे दिखाए थे? यस राइट. हाँ, तो इतना कुछ सीन नहीं है. सो बट फॉर सेफर साइड इफ यू कैन इट्स जस्ट एन एफिडेविट, इट विल हेल्प यू. 500 रुपए का, आई गेस 50 500 रुपए कुछ 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे बनाना होता है उसमें. इट्स इनफ फॉर गेटिंग. इट इज फॉर मी. यू गाइस मेक श्योर कि आप ले रहे हो. 500 रुपए में कुछ नहीं होने वाला. जस्ट डू इट. Yeah, सच में when you are paying this. I'll add to this. So my father and I, both of us, had to make an affidavit for one simple reason, because my past employer had not written my spelling correctly. It was written as DHRUVE. My birth certificate has that. Okay. And they took that same spelling on the offer letter. So I had to make that saying that I am the same person. Because they want the same, Makes sense. similarity and everything. Yes. My father also writes his own father's name in some form of documents and others he doesn't. So it's better that you have all the documents in place. जितना clean रख सकते हो उतना अच्छा है. I would also like to add. Yeah, please. So मेरा फाइनेंस में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जब मेडिकल होता है तो एक्चुअली मेरे को 2 साल का ड्रॉप हुआ था ड्यू टू मेडिकल कंडीशन. तो अभी वो पूरा रिपोर्ट मेरा अभी तो ठीक है, बट Like gap year you saying? हाँ, उस कॉलेज में जब बैचलर्स में था Okay. तब मेरा 2 साल का ड्रॉप भी हुआ था. तो एक्चुअली मेरे को RBC नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, वैसा प्रॉब्लम था. तो जब मैं मेडिकल के लिए गया तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम्हारा जो भी पास हिस्ट्री वगैरह है. मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट्स दिए. मेरे को 2019 में मैं ठीक, मतलब आई वाज ओके. तो मैंने फिर से रीजॉइन किया था तब कॉलेज. तो दे आस्क्ड मी फॉर इफ आई हैड एनी डॉक्टर सर्टिफिकेट और नॉट, कि you are all right or not. And you provided everything? Yeah, I provided them everything. Okay. But even though I provided that, मेरे को वीज़ा की तरफ से अलग से ईमेल आया था कि you were sick for 2 years and all. तो we want from the doctor who has treated you. Is there anything you have still going on, or what kind of treatment you will need? ये 5 से 10 साल में तुमको क्या लगेगा? For as a nation as well, they will keep it very clear. क्योंकि अगर आपका OSSC उसे कवर करता है तो it will be helpful for them. And you too, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो they will be responsible, right? Especially in the planes. तो आपका मेडिकल भी बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से करना पड़ेगा. अगर जा भी रहे हो आप लोग मेडिकल के लिए तो अपने कुछ पास में हुआ होगा रहेगा तो उसका रिसेंट में
सर्टिफिकेट बनवा लो डॉक्टर से, तो इट वुड बी मच बेटर और Helpful. ईजियर हो जाएगा वहाँ उन लोगों के लिए भी। जितना वो ये जितना ज़्यादा तुम चीज़ें छुपाओगे उतना, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत स्मार्ट है, सब पता चल जाता है। इट्स गुड, कितना ज़्यादा स्मार्टली नहीं बन के तमीज़ से रिस्पेक्टफुली जो बोला गया है वो डिलीवर कर दो, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वैसे वीज़ा की बातें काफ़ी होगी और वीडियो भी लंबी होगी, बट इन एडिशन अभी आप लोग आए हो, जल्दी जल्दी बता देना पार्ट टाइम जॉब्स का चल रहे हो, कर रहे हो, कोशिश शुरू कर दी? अभी तो मेरा हुआ नहीं है, मैं अभी 2 दिन पहले ही लैंड किया हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई रेज्यूमे गुड टू गेट अ हायर इन अ पार्ट टाइम जॉब। एंड अकोमोडेशन साथ साथ मेंशन कर दो। अकोमोडेशन तो मेरा हुआ नहीं था, बट मेरा फ्रेंड इधर रहता था, तो ही सेड कि डू नॉट वरी अबाउट इट, इफ यू वांट यू कैन स्टे विद मी। या Mera accommodation, I had booked it online through Scape because they're partners with RMIT. I am actively looking right now. I just landed about 4 days back. So I am attending various job shop that you have at RMIT, and also talking to different people and connecting and trying to understand how one should actually approach this system. So yeah, I've landed like 7 days back. आज मेरे को exactly 7 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, एंड मैं सब प्रोसेस वगैरह सब कर दिया, ABN TFN एवरीथिंग दैट स्टफ, इट इज़ ओवर। और अभी मैं एक्टिवली पार्ट टाइम ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली कल से मैंने स्टार्ट किया है अप्लाई वगैरह करना, बिकॉज मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब क्लियर कर रहा था। सो अभी आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम। अकोमोडेशन सॉर्टेड है? यस, अकोमोडेशन सॉर्टेड है। आई बुक्ड स्टूडेंट अकोमोडेशन, इट इज़ 570 लाइक इन इंडिया से ही बुक करके आया था, बट मेक श्योर कि वो जो दिखाते हैं वैसा नहीं होता है, ठीक है? आई गॉट स्कैम, नॉट एग्जैक्टली स्कैम, बट इट इज़ नॉट लाइक व्हाट इट इज़ shown In the picture. it is different. The pictures don't match reality. Yes, actually. ओके फॉर मी आई लैंडेड 15 days ago. मैं 12th Feb को आया था, एंड मैं जैसे लैंड हुआ मैंने एक दिन रेस्ट किया, एंड द नेक्स्ट डे आई क्रिएटेड माई ऑस्ट्रेलियन रेज्यूमे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इंडियन ऑस्ट्रेलियन रेज्यूमे, एंड एट द सेम टाइम मैंने TFN के लिए भी अप्लाई कर दिया, एंड बैंक अकाउंट जो भी बेसिक चीज़ें रहते हैं, सिम कार्ड वगैरह चेंज किया, वो सब किया। एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स, बट एट द सेम टाइम रेफरेंस से आई एम लुकिंग समवेयर। एज ऑफ नाउ आई स्टे इन बर्वुड, जहाँ पे मेरा एक सीनियर फ्रेंड रहता है, एंड थ्रू हिज रेफरेंस आई एम लुकिंग एट Kmart and Kohl's. Let's see now. So मेरा accommodation भी इसके जैसा सेम है। आई एम लिविंग एट 570 Lygon, ओके। एंड मैंने भी इंडिया से ही बुक किया था, और अभी कल ही मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू किया, पार्ट टाइम जॉब्स। ओके, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैं अपनी फील्ड को ही दूंगा, ऑफ कोर्स IT की फील्ड में अप्लाई करना शुरू किया है। स्टार्टिंग के लिए और जॉब भी ढूंढ लेना फॉर योर ऑल ऑफ यू। हाँ, मैं दोनों को ढूंढना, preference आई दे और से रहा मैं भी ये कहता हूँ, जो भी बंदा आ रहा है अपनी फील्ड में स्टार्टिंग से जो फील्ड है वो ढूंढो, बट इवेंचुअली अगर आप साथ साथ और जॉब्स करनी पड़े फॉर Yeah. फाइनेंशियल रीजंस, गो अहेड, डोंट वरी। ऑस्ट्रेलिया में हो, काम कर रहे हो, कुछ पैसे हो जाएंगे तो सेविंग हो जाएगी, इट विल बी हेल्पफुल। एंड अपनी सेविंग्स अच्छे से यूज करना प्लीज। वो तुम्हारी सेविंग्स है, अर्निंग नहीं, उस अर्निंग की तरह नहीं उड़ाना, जस्ट एक सजेशन है। और आप लोग भी, ये थी लोगों की रियलिटी अभी जो करंटली है। बाकी एक्सपीरियंस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। है। अच्छा एक्सपीरियंस बट ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, ग्राउंड रियलिटी इनके बातों से समझ में आया होगा। और जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आई डोंट नो आप लोग हो उसमें नहीं हो, सो उसमें ऑलमोस्ट 1500-1400 पीपल अभी हैं। जब तक आप देख रहे होगे और ज़्यादा हो जाएंगे, सो यू कैन कम जॉइन दैट ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप दोस्त बन सकते हो। शायद ये लोग भी वहाँ आए तो इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो आप, एंड अपना जो भी मुझसे हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, कभी मैं बिजी हूँ, इंस्टाग्राम पे वैसे लिंक है, बट अगर मैं बिजी हूँ तो टेलीग्राम पे बाकी लोग तो अवेलेबल है ना। 1500 पीपल इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, ये सब आप ही लोग हो, मैं नहीं हूँ, तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस वे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों का अच्छा फ्यूचर हो, ऑल द बेस्ट फॉर यू, फॉर योर फैमिलीज, एंड ध्यान से पढ़ाई पे जरूर ध्यान देना भाई, ठीक है? और भाई को देखो बहुत सारी केसेस मिली है, शायद पे दिख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से फ्रॉम RMIT न्यू फेब्रुअरी इनटेक स्टूडेंट्स एंड कैप्स लॉक। बाय।